ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और उसके ऊपर बेस्ड कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह भी देखे थे और फॉर्मूलाज भी देखे थे। ओके, सो आज के लेक्चर में भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। यस, यू कैन सी द स्क्रीन। Okay, so here we can just, this is what we have done last time. So we have already seen that the variation of different quantities, just like kinetic energy, potential energy, centripetal force, centripetal acceleration, momentum, angular momentum, and so on. Okay, तो अब यहाँ पे एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टोटल एनर्जी की ओर जो हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। सो बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज एक्चुअली गिवन बाय, उसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यू एन मतलब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन nth ऑर्बिट विच विल एक्चुअली बी गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, जैसा कि हम जानते हैं Q1 Q2 अपॉन R होता है वो, लेकिन वैसे यहाँ पे Q1 के बदले अगर हाइड्रोजन है तो उस केस में तो E आएगा, लेकिन हाइड्रोजन लाइक के लिए Z टाइम्स E आएगा और इंटू Q2 मतलब E फिर से, तो ZE² अपॉन R ये मिल जाएगा हमको। दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द electron in nth orbit, but actually this will be negative here. Why? Because ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, ये देख सकते हो ठीक से। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी नेगेटिव बट द प्रोटॉन और न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, and that's why there will be a minus sign here. Yes, and now if we just talk about the kinetic energy, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मिलता है हमको ½ mv² के बराबर, जो कि हम एक्चुअली फर्स्ट जो पोस्टुलेट है हमारा, तो उससे हम निकाल सकते हैं आराम से। आर अगर कैंसिल कर दो दोनों तरफ से तो उसमें से हमको मिलता है z टाइम्स ऑफ E² अपॉन 8 टाइम्स ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R². This is actually the expression for kinetic energy of the particle or electron in nth orbit. Yes, and the total energy here is denoted by E or En we can say, which is going to be the sum of this potential energy and kinetic energy. We can just see from these expressions that if we just multiply this kinetic energy by 2, then we can just get the potential energy. Correct है? Sorry. So ये जो है double of kinetic energy will be actually the potential energy. Actually, in fact, -2, right? So we can just say that this UN is actually going to be -2 times of Kn. Okay, Kn, where K stands for the kinetic energy and U stands for the potential energy. Or we can just also call say that this kinetic energy is actually going to be -1/2 times of potential energy. Okay, मतलब मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। तो ये हमको समझना है, और इसी वजह से जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो ठीक से, इफ यू जस्ट ऐड दिस टू अप, देन यहाँ पे चलो द टोटल एनर्जी विल बी एक्चुअली द UN plus Kn, no doubt. But as we already know that this UN is simply -2 times of Kn, and hence if we just replace it here, then we can get this -2 times of Kn plus Kn simply adds up to minus of Kn here. Okay, and that means we can just get that this total energy in this case is actually going to be minus of Kn, which is ZE² upon 8 times of pi epsilon naught into R². Okay, so this is the going to be the formula for total energy of electron in nth orbit. Okay, but if you just want to express it in terms of the principal quantum number n, then we can just replace this, sorry, R, see only R, not R². Yes,
Okay, so the total energy of the electron in nth orbit will be expressed in terms of the principal quantum number n if we just use the formula for radius of nth orbit, okay, which is actually going to be epsilon naught into h square into n square upon pi m e square. ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो उसमें से हमको ये देखो ई एन जो है वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 8 pi epsilon naught into reciprocal of r, which is actually going to be pi m e square upon epsilon naught into h square into n square, करेक्ट है, जिसमें से हमको यहाँ पे m जो है सॉरी पाई जो है वो कैंसिल हो जाता है, इवन epsilon naught जो है वो डबल हो जाए मतलब स्क्वायर हो जाएगा उसका, एंड फाइनली वी कैन जस्ट अराइव एट दिस इक्वेशन दैट इज en is equal to माइनस ऑफ, हाँ सॉरी वन मोर थिंग इज दैट आर एन जो है वो आर एन ये तो हाइड्रोजन के लिए था है कि नहीं, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हाइड्रोजन लाइक में क्या होता है, जेड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जेड मतलब प्रिंसिपल क्वांटम सॉरी एटॉमिक नंबर जो है तो वो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली डिनोमिनेटर में अपीयर करता है, ओके, जिसके कारण यहाँ पे अगर ये हमने यहाँ पे डाल दिया तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ पे z into z actually becomes z square in this way. So therefore we can just get that this minus of z in z square into m e raised to 4 upon 8 times of epsilon naught square into h square into n square. Okay, so this is actually going to be the formula for the total energy of electron in nth orbit, remember. And now if we just put all the values except z and n here, then we'll be able to get this as the energy of electron in nth orbit is actually going to be minus of 13.6 into z square upon n square. Okay, ये जो फॉर्मूला है ये रेडीमेड फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी मतलब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के अंदर का एनर्जी निकालने के लिए, जैसे कि सबसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम निकाल के दिखाएंगे एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ओके हाइड्रोजन एटम, तो अभी हाइड्रोजन एटम होने की वजह से यहाँ पे z का वैल्यू कितना आएगा 1, करेक्ट है, और थर्ड ऑर्बिट होने की वजह से यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा 9, और उसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी एक्चुअली E is equal to minus of 13.6 into 1 square upon 3 square. That means it actually will be equal to minus of 13.6 upon 9. That's all. And that is going to be in electron volt. Okay, don't forget that. This will be in electron volt. Yes. So this will be the energy of electron in third orbit of hydrogen atom. In the same way here, if you just want to find out the energy of second orbit of हेलियम आयन, ओके हेलियम जो प्लस आयन होता है उसके अंदर के सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी अगर हमको ढूंढ के निकालना है तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, माइनस 13.6 इज टू बी केप्ट एज इट इज, ओके, एंड हियर z के बदले क्या डालना है, 2 डालना है, क्योंकि यहाँ पे हेलियम है ना तो हेलियम का Z2 होता है उसका स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, n को भी हमको 2 ही डालना है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट बोला है तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर कैंसल and we'll just be left with this the minus 13.6 electron volt only as the final. In the same way here, if we want to find out the energy of first orbit in lithium ion, okay, फर्स्ट ऑर्बिट का के अंदर का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिथियम आयन के अंदर प्लस आयन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर का अगर हमको निकालना है तो फिर से हमको वही करना है कि एनर्जी विल बी एक्चुअली माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बट यहाँ पे z कितना है लिथियम का 3 है तो इसलिए यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, और n कितना है 1 है इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब सिंपली 9 टाइम्स ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल हैव एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड हियर, करेक्ट है. सो इन दिस वे वी कैन जस्ट फाइंड आउट द एनी टाइप ऑफ एनर्जी, और इवन अगर सपोज हमको टोटल एनर्जी अगर मिल जाता है
देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा ना, तो उसको यूज करके ये देखो यहाँ पे UN जो है वो डबल ऑफ KN है। और अभी अभी हमने देखा कि EN जो है, EN वो एक्चुअली KN के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज EN इज एक्चुअली गोइंग टू बी माइनस ऑफ KN, बोल सकते हो ऐसा। और इसको समराइज करके या कंबाइन करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गोइंग टू बी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, and it is this kinetic energy actually Kn in nth orbit is going to be same as the total energy of electron in nth orbit, but actually it is negative, right? So ये माइनस साइन है यहाँ पे। ये जो देखो यहाँ पे एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पे माइनस साइन उसके अंदर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अंदर माइनस साइन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इन En और Kn को अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो वहां पे हमको ये इक्वेशन मिलेगा। सो Kn इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ En, समझा ठीक से? ये एक बात। और एट द सेम टाइम ये जो ये टोटल एनर्जी जो होता है ना, ये पूरा टोटल एनर्जी जो है, या इसको भी हम बोल सकते हैं दिस इज द टोटल एनर्जी in terms of N. Okay, so this will total energy itself is actually called as the binding energy actually. So इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो उसको हम चाहिए तो Bn लिख देंगे। Bn मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, उसको ही एक्चुअली आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, या आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। याद रखो एक बार ठीक से कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन इंथैल्पी is going to be the same as binding energy. That is the minimum amount of energy which is required for removal of last isolated electron, last orbit electron from an isolated gaseous atom. Okay, which is also defined as the ionization enthalpy. Okay, which is we are going to denote it by Bn in this case here. अभी Bn को Bn से ही डिनोट करना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, you can just denote it by I also, because it is the ionization enthalpy, or IE also, no doubt, but whatever it may be, it will be actually Bn, and in magnitude it will be just same as the kinetic energy only. तो काइनेटिक एनर्जी के ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड का वो होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेम इन मैग्नीट्यूड, बट total energy is going to be just negative of kinetic energy, and here the potential energy is actually going to be -2 times of kinetic energy. तो अगर इन चारों में अगर देखो ठीक से, तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा है जो एग्जैक्ट सेम है, मतलब सबके अंदर कंटेंट है। तो इसलिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर निकाल के लेंगे, तो इसमें से हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -UN/2, करेक्ट है? इसमें से अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ En ओनली, और इसमें से पता चलता है सिंपली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Bn ओनली। तो ये तीनों चीजें अगर हम कंपेयर करेंगे या कंबाइन करेंगे, तो हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी विच इज गोइंग टू बी सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी, which is going to be same as negative of total energy, which is going to be same as the minus of potential energy upon 2. तो ये पूरा एक ही लाइन में सारी एनर्जीज आ गए। देखो, अगर इनमें से कोई भी एक पता है तो बाकी तीनों मिल जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी एक पता है तो भी हम तीनों निकाल सकते हैं आराम से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स नाउ। ठीक है, जो ग्राफ्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो ये देखो सपोज ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये सपोज एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, और समझो कि यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं अलग अलग एनर्जीज। तो अभी ऑब्वियसली एक सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात याद रखो कि इन सभी क्वेश्चंस या इन सभी एग्जांपल्स के अंदर, एक्सप्रेशंस के अंदर, ये देखो यहाँ पे इसमें से हमको पता चल रहा है कि En जो है उसके अंदर n² नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, है कि नहीं? और इवन यहाँ पे भी इसमें से भी हम देख सकते हैं कि ये UN देखो या Kn देखो या En देखो, इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर ना R जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? ये देखो R यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है। तो ऑल हिज एग्जाम एक्सप्रेशंस कंटेन R इन द डिनोमिनेटर। सो द कॉमन थिंग वी कैन जस्ट से दैट ये चाहे Kn हो, En हो या Bn हो या UN हो, तो ये एनर्जीज जो है, एनर्जीज इन nth ऑर्बिट आर जस्ट गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है ना कि जो एनर्जी जो है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n², दैट इज स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन विच दैट इलेक्ट्रॉन लाइज। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक टेंटेटिव चीज तो हमको ये पता चल गई कि अगर हमने En और R के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो वो तो इस तरह से आने वाला है।
ठीक है, it will never touch the x axis, but it will just go on decreasing and decreasing only in this way. तो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा। और en का अगर n स्क्वायर के हिसाब से अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे n स्क्वायर डाल दिया और यहाँ पे en डाल दिया, तभी भी हमको सिमिलर ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें ये जो n जैसे बढ़ता है वैसे en जो है वो घटने वाला है। इसलिए हम देख सकते हैं कि द ग्राफ विल एक्चुअली बी लाइक दिस। ठीक है, तो सभी ग्राफ जो है ना, नॉट ओनली दिस en but also bn also will have the same graph, kn also will have the same graph, and even un also will have the same graph। मतलब टाइप जो है वो सेम ही रहेगा, नेचर ग्राफ का या पैटर्न ग्राफ का सेम ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन लोकेशन अलग अलग रहेगा। देखो ठीक से, अभी ये लोकेशन के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, तो देखो मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूंगा ब्लू कलर लाइन से। ठीक है, ब्लू कलर से। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है उसका एक्सप्रेशन देखो ठीक से। हमने अभी भी देखा कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव दैट मीन्स द ग्राफ विल बी अबव द एक्स एक्सिस। जो ग्राफ पॉजिटिव होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो इसलिए ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओके विथ रिस्पेक्ट टू आर। यस, तो आर के हिसाब से ये ग्राफ बना हुआ है। Even we can just consider it up to with respect to n square और n itself। तो n के बीच में भी हम ग्राफ समझ सकते हैं, ऐसा ही होगा जरूर। लेकिन अभी ये जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि kn is exactly same as bn। तो अगर हमको bn का ग्राफ चाहिए, bn मतलब क्या, द बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का अगर ग्राफ हमको ड्रॉ करना है तो इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, विच कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। तो देखो ये इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा। जो कि इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा। देखो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेम डिस्टेंस पे ये ग्राफ रहेंगे, ऊपर नीचे सेम ही रहेगा। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन। ओके, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ bn एक्चुअली। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ bn विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r और n स्क्वायर और n, नो डाउट। अभी तीसरा ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं जिसमें ये जो है ठीक है, en का अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, en देख रहे हो ठीक से, en इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी kn। मतलब en और kn के बीच में एक नेगेटिव साइन है, जिसके कारण, और बाकी तो सेम ही है वो, ठीक है बिल्कुल सेम है, तो इसलिए, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये bn का नहीं है, ये ग्राफ तो एक्चुअली bn भी पॉजिटिव था ना। यस, bn वाज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के कारण उसका भी ग्राफ जो है वो वैसा ही मिलेगा। ओके, सो लेट अस जस्ट मेक अ करेक्शन हियर। ये bn का ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअली en का ग्राफ है। हेलो, हाँ।
Yes. Okay. So this is the graph of total energy actually, which is going to be the reflection of kinetic energy. And if you just talk about the binding energy, then there is no difference between these two graphs. Actually, see here, ये जो kinetic energy का जो ग्राफ है, तो वो और ये जो बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है, वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहने वाला है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहने का. ये देखो, this is the graph of binding energy actually. Okay, because both of them are positive and also they are equal in magnitude, right? But सवाल पैदा होता है कि what is the how is the graph of this UN actually? UN का ग्राफ कैसे होगा? तो UN इस फॉर्मूला से हमको पता चलता है कि it is just double in magnitude that of the kinetic energy and it is going to be negative also. तो नेगेटिव होने का मतलब वो उल्टा तो होगा, नेगेटिव साइड में तो होगा, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी डबल ऑल्सो. तो डबल का मतलब ऐसा होगा, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसका डबल करना है और ये डिस्टेंस यहाँ पे हमको मिलेगा, वो पॉइंट हमको ज्वाइन करना है. सेम वैसे ही यहाँ पर देखो, ये पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया डबल डिस्टेंस वाला, यहाँ पे ये पॉइंट और ये जो है यहाँ पे ये पॉइंट हमको मार्क करना है. ऐसे ही सभी सभी पॉइंट जो है वो हमको मार्क करते जाना है, जो कि डबल डबल डिस्टेंस पे रहने वाले हैं. ओके, so if you just join all the points, then we can just get a graph like this. Okay, where see here this distance, ये जो distance है actually यहाँ से यहाँ तक का जो distance है वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, तो वो अगर हम देखेंगे उनके बीच में relationship, तो this distance is actually going to be double of this one here. Okay, मतलब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख सकते हो, ये इस पॉइंट पे अगर हमको करना है तो भी कर सकते हो. देखो ये वाला डिस्टेंस जो है उसका डबल डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा नीचे इस तरह से. ठीक है, अभी वो ठीक है, स्केल के हिसाब से हमको नहीं दिखाई दे रहा है वैसा, बट इट विल बी एक्चुअली. तो ये जो है इस डिस्टेंस के डबल इतना डिस्टेंस ये रहेगा इस तरह से. तो हम ये समझ सकते हैं आराम से. लेट अस जस्ट स्लाइटली लिफ्ट दिस ग्राफ एंड जस्ट पुट इट हियर so that it will be better estimated. Okay, तो अभी हम देख सकते हैं आराम से कि किस तरह से वो डबल है. एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ UN. ठीक है, UN मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस. ओके, ये जो येलो कलर का जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ग्रीन कलर वाला जो है वो टोटल एनर्जी का है, और जो ये दोनों जो है KN और BN, इन दोनों के ग्राफ्स कोइंसिडेंट ही है. ठीक है, जो कि ब्लू और रेड कलर से ड्रॉ किए हुए. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द graphs. Remember, you can just see, and a similar graph will be between n square also. अगर n square या n के लिए भी अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तभी भी सेम ही हमको मिलेगा, सेम सिमिलर ग्राफ हमको मिलेंगे जरूर. तो ठीक है, so this is all about the kinetic energy and energies in short. Now we'll see the theory of spectral lines. होता क्या है ना कि कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है, तो उनमें से इनको जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये सपोज थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन लाइक दिस. तो अलग अलग ये जो ऑर्बिट्स है, तो अभी हाइड्रोजन एटम के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल. सो हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इवन हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है उनके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. So, but that electron can remain either in this shell or this shell, or it may be in this shell or it may remain in this shell. So, depending upon these shells, okay, the energy of electron will be different in different shells. We can just call the energy of electron in this first orbit to be simply E1, the energy of electron in the second orbit to be E2, and the energy of electron in the third orbit will be called as E3, and so on like this and so forth. Okay, so the energy of electron in nth orbit can actually be given by the formula En, which is going to be equal to Z square into M e raised to 4 upon 8 epsilon naught square into H square into N square. Sorry, epsilon naught square नहीं है. Yes, हाँ नहीं है, epsilon naught square है. डिनोमिनेटर में सारे जो क्वांटिटीज है वो स्क्वायर्ड है. ठीक है, तो ये हमको समझना है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. ओके, सो एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ 13.6
to Z square upon N square, and that is going to be in electron volt. Okay, now see here, we can just put the value of N to be simply 1, 2, 3, 4 and get the energies of different orbits here in the hydrogen atom. But here what happens is, whenever the electron in hydrogen atom just jump from this second orbit to first orbit, or third orbit to first orbit, or the fourth orbit to first orbit here, then the series of wavelengths emitted is actually called as the Lyman series. And this Lyman series has a transition from any of the higher orbit to first orbit. In the same way here, third से second पे भी अगर jump करता है, या fourth से second पे jump करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो वो सीरीज इमिट करता है वेवलेंथ का, उसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं. इवन फोर्थ से जब थर्ड पे जंप करता है या फिफ्थ से थर्ड पे जंप करता है, तो उसमें जो सीरीज वो इमिट करता है वेवलेंथ का, तो उसको हम पास्शियन सीरीज बोलते हैं. सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज कैन आल्सो बी डिफाइंड. But here in general, what happens is, whenever the electron in nth orbit just jumps into pth orbit, तो मतलब in short क्या है ना कि एक nth orbit में से अगर इलेक्ट्रॉन pth orbit में जंप करता है, तो उसका जो वेव वो इमिट करता है, उन वेव्स का जो एनर्जी है तो वो h न्यू होता है, और जो कि इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर हुआ करता है. So you can just get the equation that is En minus Ep is equal to h nu, where En is the orbit where the electron jumps from, and Ep is the orbit where the electron jumps on. Okay, and by using this equation and just putting the values of En and Ep from this equation here, we can just arrive at the Rydberg's formula or Bohr's formula for spectral lines, which tells us simply that 1 upon lambda is equal to the Rydberg's constant into 1 upon p square minus 1 upon n square. This is actually going to be the Rydberg's formula for wavelength of spectral line in hydrogen atom. And here Rydberg's constant जो है वो r है यहाँ पे, जो कि actually z square into m e raised to 4 upon 8 times of, नहीं सॉरी, Rydberg constant जो का जो वैल्यू है तो उसमें z स्क्वायर नहीं आता. ये हमने एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा है, याद रखो. और अगर सपोज ये Rydberg कांस्टेंट का जो वैल्यू है तो वो होता है एक्चुअली m e raised to 4 upon 8 times of epsilon naught square into h cube into c. ये वैल्यू होता है Rydberg कांस्टेंट का. ओके, तो और अगर सपोज ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ये फॉर्मूला, बोर्स फॉर्मूला, तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 upon lambda which is equal to z square into r, and that is multiplied with 1 upon p square minus 1 upon n square. That's it. So this is only for hydrogen like atoms, just like helium and lithium. Okay, तो ये दोनों फॉर्मूले हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं. No doubt we can just remember this formula only, and this will be just a special case when z equal to 1 here. Okay, so yes, यहाँ पे Lyman सीरीज के लिए क्या होता है तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि Lyman सीरीज के corresponds to p equal to 1 and n may be 2, 3, 4, 5, 6 and so on like that. Then again the next is about the Balmer series. Okay, so Balmer series corresponds to p equal to 2. Okay, Balmer series के लिए होता है p becomes equal to 2 and n may be any number which is higher than 2. So it may be like 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity in this way. Then again Paschen series के लिए हम देख सकते हैं कि Paschen series के लिए p becomes 3 and n may be either 4, 5, 6 and so on like this. In the same way here bracket series and fund series can be discussed about. ठीक है, for which p will be 4 and 5 respectively. ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए अगर देखते हो तो पता चलता है कि the p will be actually 4, and in the same way here for fund series p will be equal to 5 and n will be just greater than that accordingly. तो ये इस तरह से हमको मिलता है. This is the Bohr's formula for finding the hydrogen spectral wavelength of spectral line in hydrogen atom. Okay,
अभी इसके अंदर एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कंसेप्ट आता है। देखो ठीक से यहाँ पे ये है 1/λ which is going to be equal to z square into r into 1/p square minus 1/n square, correct है? So that here we can just get the shortest wavelength. Shortest wavelength कभी हमको मिलेगा, देखो ठीक से, for the shortest wavelength we must consider the value of n to be infinity. Okay, wavelength will be shortest only when n will be equal to infinity. अगर यहाँ पे n equal to infinity डाल देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 1/n square जो है that will become equal to 0, and since 1/n square becomes 0, this 1/p square minus 0 becomes 1/p square only, and hence we can just get this 1/λ s, that is shortest wavelength, which is going to be z square into r into 1/p square minus 0, and minus 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे 1/p square डाल सकते हैं सीधा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो हमको मिल जाएगा आराम से, which is actually going to be equal to ये उसका रेसिप्रोकल, मतलब p square upon z square r, that's it. So this is going to be actually the shortest wavelength of the hydrogen like atoms in case of here hydrogen like atoms in this case. तो इस तरह से किसी भी वेवलेंथ, किसी भी सीरीज का अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ढूंढना है, फॉर एग्जांपल if you suppose want to find out the shortest wavelength of suppose Balmer series in helium ion, okay, so how will find it out? तो देखो shortest wavelength of Balmer series का मतलब क्या हुआ, p is going to be equal to 2, and helium का मतलब क्या हुआ, z is also going to be 2, करेक्ट है? तो अगर हम ये z और p के बदले अगर 2 2 डाल देंगे तो इसमें से क्या मिलेगा, देखो द वेवलेंथ मिलेगा एक्चुअली p स्क्वायर, तो मतलब p का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू r, that means it will be actually 2 square cancel 1/r, that's all. So this is actually going to be the shortest wavelength of Balmer series in helium ion. Okay, then again we can just discuss about the shortest wavelength of Paschen series in suppose lithium ion. Okay, lithium के अंदर क्या होगा, वही होगा, देखो Paschen series मतलब p equal to 3, and lithium के अंदर z becomes 3, and if we just put this p square as 3 square and z square as 3 square, then p square z square will get cancelled and we'll be left with 1/r as a final, no doubt. But we have to understand this, we can just find out the shortest wavelength in this way. Okay, and in the same way here there is a formula for longest wavelength also. So for the longest wavelength, what we have to do is we have to keep the value of n just one greater than p. Okay, so longest wavelength will be obtained only when n will be equal to p plus 1. Okay, so in that case, for example, if you want to find out the longest wavelength of suppose Lyman series, okay, in lithium ion. Okay, lithium ion के अंदर Lyman series का longest wavelength अगर हमको चाहिए तो देखो longest wavelength का मतलब अभी यहाँ पे p n equal to p equal to p plus 1, ये तो फिक्स्ड है, बट Lyman series का मतलब क्या हुआ, p is going to be equal to 1, right? and lithium का मतलब क्या हुआ, z is going to be equal to 3. So if we just use it here in this expression, then what we can get is 1/λ longest मतलब l, which is going to be z square. तो अभी यहाँ पे देखो z कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू r इंटू 1/1 square minus 1/2 square, that's all. This will give us the longest wavelength of Lyman series in lithium ion. So it will be actually 1/λ l, which is going to be 9r into 1 minus 1/4, which is actually 3/4. Okay, so 9 times of r into 3/4, which will actually be equal to 27r/4,
as the final, which will be the reciprocal of longest wavelength actually. But the longest wavelength can also be found out just by taking the reciprocal of this. So I hope you have cleared the concept of longest wavelength here. Okay, तो longest wavelength किस तरह से find करना होता है, तो ये हमने अभी already देखा. Yes. And lastly is that ये जो Lyman series जो का जो wavelengths है, तो all the wavelengths in Lyman series fall in ultraviolet rays. Remember, they are ultraviolet region. And Balmer series के जो waves है, तो ये सारे के सारे जो wavelengths है वो actually यहाँ पे visible light के अंदर आ जाते हैं. Visible light, ठीक है, जिसमें violet से लेके रेड तक ये सारे कलर्स उसमें आ जाते हैं. अगेन हियर इन केस ऑफ द पाश्चन सीरीज के जो वेवलेंथ्स है, तो वो एक्चुअली नियर इंफ्रारेड रेज में आते हैं, नियर IR. ठीक है. देन अगेन इन केस ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, द वेवलेंथ हैपेंस टू बी इनटू मिड इंफ्रारेड रेज, मिड इंफ्रारेड. और फंड सीरीज जो है, तो उसके अंदर के जो वेवलेंथ्स है वो सारे के सारे एक्चुअली फार इंफ्रारेड रेज के अंदर चले जाते हैं. फार इंफ्रारेड रेज, ठीक है, उनके वेवलेंथ में डिफरेंस है. और इवन इससे भी आगे जाके ये जो विजिबल कलर के जो अंदर के जो वेव्स है, तो वो यहाँ पे विजिबल लाइट, मतलब बाल्मर सीरीज के अंदर के जो वेव्स है वो विजिबल लाइट होने की वजह से इनका जो फर्स्ट जो है उसको हम अल्फा बोलते हैं, फर्स्ट लाइन. दो सेकंड जो है उसको बीटा बोला जाता है, और थर्ड लाइन को गैमा एंड देन डेल्टा ऐसे हम बोलते हैं. एक्चुअली इसको H अल्फा, H बीटा, H गैमा एंड H डेल्टा ऐसे बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल H अल्फा का मतलब क्या हुआ? H अल्फा का मतलब बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन. अभी देखो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन मतलब क्या? बाल्मर सीरीज के लिए ऑलरेडी P इक्वल टू 1 होता है, बराबर. और उसके फर्स्ट लाइन का मतलब है N इज गोइंग टू बी जस्ट 1 ग्रेटर देन P. दैट मीन्स N विल बी इक्वल टू 2. दैट्स इट. So this is the configuration of H alpha line. Remember, what about H beta? H beta is going to be the second line in case of Balmer series. Sorry. P equal to 2. Okay, and N must be 3 actually. क्योंकि Balmer series का P equal to 2 होता है कि नहीं, fixed. इसलिए P is going to be 2 here for all these H alpha, H beta, H delta, and H gamma, no doubt. But N will be just 1 greater than this P for alpha. Then for beta, P may be 2 only, but N will be actually 4, which is 2 greater than P here. In the same way here, for H gamma, P will be 2 only because Balmer series का ही वो part है, but N will be 3 greater than 2, मतलब 5 होगा actually. Okay, and in the same way here, H delta will actually be the fourth line of Balmer series, which corresponds to P equal to 2 and N equal to 6 here. So these are the configurations of all these lines. Okay, and ये जो visible color के अंदर ये fall होते हैं, इसीलिए उनको अल्फा बीटा गैमा डेल्टा बोला जाता है. अदरवाइज ये जो बाकी के जो सीरीज है, पाश्चन सीरीज या लेमन सीरीज या ब्रैकेट सीरीज, उनके अंदर के जो अलग अलग लाइंस है या वेवलेंथ्स है, उनको H अल्फा बीटा या गैमा डेल्टा से डिनोट नहीं करेंगे. ठीक है, उनको सिंपली फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज या फिफ्थ लाइन ऑफ फंड सीरीज ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन जब स्पेशली H अल्फा, H बीटा, H गैमा, H डेल्टा बोला जाता है, तो इसका मतलब वो बाल्मर सीरीज के ही वेवलेंथ्स है, जिसके लिए P का वैल्यू फिक्स्ड 2 होता है, और N का जो वैल्यू है वो रिस्पेक्टिवली 3, 4, 5, 6 हो सकता है फॉर अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा रिस्पेक्टिवली. ओके, so these are the topics we have to discuss today. Okay, so next lecture में हम रेडियो एक्टिविटी और द इमिशन जो होता है, न्यूक्लियर इमिशन जो होता है, और इवन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पूरा सब डिस्कस करेंगे. ओके, तो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. अच्छा सुनो, आपका जो लेक्चर है वो 3 बजे रखा तो चलेगा क्या?